ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਏਗਾ। पर चंगी गल यह है कि इस दे नाल जेकर तुहानूं समय सिर पता लग जाए तो इस तो बचिया जा सकता है, टेस्ट करवाए जा सकते हैं, इलाज संभव है। तो अज की इस पेशकश विच असीं गल यही करनी है कि आखिर सर्विकल कैंसर की है, ये किवें फैलदा है, इस दे लक्षण की ने, इस तो किवें बचिया जा सकता है, डॉक्टरां दी इस ते की राय है ते सरकार इस नूं रोकण दे लई की कदम चुक रही है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। इस कैंसर का सैक्स नाल सीधा संबंध हुंदा है। सर्वाइकल कैंसर आम तौर ते शुरुआती दौर विच कोई खास लक्षण नहीं विखाउंदा। हौली हौली इस दे लक्षण सामने आउंदे ने। जेकर इस दी समय सिर पछाण ना कीती गई तां इह जीवन लई खतरनाक साबित हो सकदा है, पर जल्दी पता लगण ते इस दा इलाज भी संभव है। सर्वाइकल कैंसर दे कई लक्षण हन, जिवें महिलावां 'च संभोग तो बाद खून दा आउणा, माहवारी के दौरान स्पॉटिंग होना, पेलविक दे विच दर्द रहना, योनि तो बदबूदार रिसा होना। सर्वाइकल कैंसर महिलावां विच सब तो वध होण वाला दूजा वड्डा कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर ही एक अजिहा कैंसर है जिस दी रोकथाम लई वैक्सीन उपलब्ध है। इस पिछे सोच सैक्शुअल एक्टिव होण तो पहला कुड़ियां नूं वैक्सीन देण दी है। इस दी रोकथाम दे लई HPV वैक्सीन लगदी है। 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। FOGSI ਅਨੁਸਾਰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ HPV ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। जेकर इस विचाले सही इलाज किया जाए तो कैंसर तो बचिया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने लई एक टेस्ट होंदा है जिसनूं कहंदे हैं पैप समेर, यानी कि PAPSMEAR। इस टेस्ट राही सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। हुण तुहानूं दसदे हां कि आखिर ये टेस्ट की है। यह टेस्ट हर एक सैक्शुअल एक्टिव महिलावां नूं करवाउणा चाहीदा है। हर एक महिला नूं 25 साल की उम्र तो हर 5 साल ते यह टेस्ट करवाउणा चाहीदा है। ये आसानी नाल बिना हस्पताल विच भर्ती होए, घट खर्चे ते बिना किसी दर्द तो करवाया जा सकता है। सो जेकर समय सिर सर्वाइकल कैंसर का पता लग जाए तो समय सिर इसका इलाज शुरू किया जाए तो इस भयानक बीमारी तो बचाया जा सकता है। ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਵੀ HPV ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਐਨਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਾਨੀ ਮਸੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ HPV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ HPV ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗਠਾਂ, ਮੱਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਲ ਜਾਂ ਥਰੋਟ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਟੀਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਹ ਬੇहद ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੌਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੌਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਵਿਕਲ कैंसर है कि। मैम सब तो पहला था वेलकम, नमस्कार आपको। तो मैम सर्विकल कैंसर जो है सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि सर्विकल कैंसर है क्या, उसका डाटा क्या है, क्यों हम इतना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सर्वाइकल कैंसर अगर हम पूछें तो हम औरतों में हर 50 औरतों में से एक को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो आप ये समझिए कि इस कमरे में अगर 50 औरतें हैं तो इनमें से एक की मौत या बीमारी या जो भी करना होता है हमको ट्रीटमेंट, वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इतनी इम्पॉर्टेंट है ये। और सारे कैंसर्स में से 25% वर्ल्ड वाइड कैंसर्स इंडिया में है जो सर्वाइकल कैंसर है। तो आप समझिए इसका कितना बड़ा नंबर है। और ये महिलाओं में ही होता है। महिला को कैसे पता लगे कि अब मेरे अंदर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, मेरे अंदर ये लक्षण है? उसके लिए एक तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो, डिस्चार्ज हो, लोअर एब्डोमेन की तरफ से पेन हो, या पीरियड्स ज़्यादा हैवी हो, या लगता है कि कोई डिस्चार्ज हो रहा है जो बदबूदार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर सकती हैं कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है। पर इसके लिए एक स्टेप आगे हम लेडीज़ को जाना चाहिए कि हर थोड़े सा उम्र पे 35-40 इयर्स के उम्र पे रेगुलर चेकअप्स लेडीज़ का, जैसे एज बढ़ती है वो और जल्दी होता है। पहले 4-4, 5-5 साल में पैप स्मीयर्स वगैरह होते हैं जो पिकअप कर सकते हैं, तो वो प्रिवेंटिव पार्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये फैलता कैसे है। ये तो एक जैसे कैंसर फैलता है वो आसपास की जगहों में खून से फैलता है। मतलब ये एक दूसरे को, जैसे आपको हुआ और मुझे हुआ, मैंने आपसे बात की, वैसे सर्वाइकल कैंसर नहीं फैलता। ये तो अगर किसी को हुआ है तो वो अपने बॉडी में अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो फैलेगा। पर उसको प्रिवेंट करने के लिए एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलो वायरस। अगर वो वायरस इन्फेक्शन को आप अगर बचा सकते हो कोई लेडी को होने से, तो आप 70-80% चांसेस है, 100% नहीं, 70-80% चांसेस हैं कि अगर आपको वो HPV इन्फेक्शन ना हो तो आपको कैंसर ना हो। तो इसकी भी स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, तो कितनी उम्र में हमें पहले पता लगता है कि ये स्टेज 1 आ गई है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता कि स्टेज 1 स्टेज 2। हर बीमारी कैंसर अगर है तो उसकी अपनी स्टेजिंग है। पर आप अगर इन्फेक्शन HPV वायरस इन्फेक्शन के लिए है, उसमें स्टेजिंग जैसा कुछ नहीं होता कि स्टेज 1 स्टेज 2। आप में है अगर इन्फेक्शन तो आपको हो गया है, अगर आपको नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। पर ये जनरली जो ये इन्फेक्शन है एक्टिव सेक्सुअल कांटेक्ट एक्टिविटी के बाद होता है। तो इसके लिए जैसे वैक्सीनेशन भी होता है, एक ही वैक्सीन है इससे क्योर करने के लिए या और भी बहुत सारी वैक्सीन हैं? नहीं, वैक्सीन तो आपकी एक ही है। मतलब और टाइप का पार्ट्स टाइप, जैसे 4
के वायरसेस को कवर करने वाली है। 9 वायरसेस एक वैक्सीन में है। कंपनीज़ अलग हैं जो हैं, पर वैक्सीन एक ही है, HPV वैक्सीन, चाहे वो 4 स्ट्रेन्स की हो या 9 स्ट्रेन्स की हो। बट एक चीज़ और, ये जो HPV इन्फेक्शन है ये खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं कॉज करता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जेनाइटल वॉट्स होते हैं, वल्वा का वजाइनल कैंसर्स भी हो सकते हैं इस HPV से, ओरल कैंसर्स, थ्रोट कैंसर्स भी होते हैं HPV से। तो इट इज़ नॉट ओनली कि आप वैक्सीन दे के आप सर्वाइकल कैंसर को रोक रहे हो, आप ये सब चीज़ें, थ्रोट कैंसर है, जेनाइटल का है, वजाइनल है, और लड़कों में एनल कैंसर भी, अगर आपके बॉडी में HPV इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है जो HPV इन्फेक्शन से होता है। ओके, मतलब हम ये माने कि HPV से सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, और अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि लड़कियों में ये कैंसर ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या होता ही उन्हीं में है ना, तो लड़कों को भी वैक्सीन दी जा रही है, और लड़कों में कैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं कि लड़कों को ध्यान देना चाहिए? वो एनल कैंसर, तो अगर कोई लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है या कोई अल्सर लगा है, जो कोई भी एनल कैंसर का साइन होता है वो होता है। फिर जब आप सोचो, देखो कि लड़के को एनल कैंसर हुआ है तो आप कॉज ढूंढो, तब उसमें HPV इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है लड़कों में एनल कैंसर। सेम वे थ्रोट कैंसर्स और माउथ के अंदर कैंसर्स भी जैसे लड़कियों में हो सकते हैं, उसी तरह लड़कों में भी HPV की वजह से हो सकते हैं। और वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन लगाने की सही एज क्या है? कोई भी एज आफ्टर 9 years ऑफ एज। बट अगर आप 14 साल से पहले लगाएंगे तो आपको 2 डोजेज़ लगाने हैं, 2 डोज के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। और अगर आप 14 साल की उम्र के बाद लगाएंगे तो फिर आपको 3 डोजेज़ लगाने हैं, 0 to 6 मतलब मंथ्स में। दूसरा कि जनरली एटलीस्ट यहाँ कहा जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी लड़कियों में 25-26 तक, तो नॉर्मली 15 से 26 तक आप नॉर्मल रूटीन में लगवा सकते हो। बट अगर आप उसके बाद, इवन अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो चुकी है शुरू, पर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप लगवा सकते हैं। तो क्या हम लाइफ में कुछ ऐसा अपने रोज़ाना रूटीन में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे हम इससे बच पाएँ या इस इन्फेक्शन को कम कर पाएँ? कुछ जीवन शैली में चेंजेस ज़रूरी हैं इसके लिए? आप रूटीन इम्यूनाइजेशन करवाइए अपना और अपने बच्चों का, और जितने लड़कों को आप, जितने बच्चे आप जानते हैं, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। और इसकी सब जगह हमने अपने OPDs में सब जगह पैम्फलेट्स लगा रहे हैं, बांट रहे हैं। हमने तो साल 2016 से हम मतलब 5 साल से अब ये वैक्सीन हम सबको ऑफ़र कर रहे हैं, पर अब हम भी अब और ज़ोर से अवेयरनेस, जब से हम भी और अवेयर हो गए हैं, तो हम भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसका इम्यूनाइजेशन हर बच्चे को ज़रूर देना चाहिए और ऑफ़र। और जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया है कि फरवरी एंड से जो इन्होंने शुरू किया है कि इनको हर आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटर में जो वो 1 डोज, 2 डोज की जगह अभी 1 डोज दे रहे हैं, तो एटलीस्ट कहीं तो शुरुआत हुई। और 1 डोज कहते हैं 80 to 90% कवर करता है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो कुछ तो सही। आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात की, तो गवर्नमेंट की तरफ से हालांकि स्कूल में फ्री वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, पर हर एक तबके तक पहुंचना मुश्किल है। फिर भी क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं? क्या हम किसी को ओरिएंटेशन दे रहे हैं, या लिटरेट क्लास को हम ओरिएंटेशन दे सकते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास तक पहुंच कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके पास हम कैसे अपनी पहुंच को बना रहे हैं? ये एक, जैसे मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो पूरे कंट्री के डॉक्टर्स का एक NGO एक कह सकते हैं आप, तो उसकी मैं बाय चांस नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो हमने लास्ट ईयर फरवरी में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट कि हमको कंट्री वाइड
कम से कम 30,000 डॉक्टर्स, और हमने मेन सिटीज़ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं लिया। हमने छोटी सेकंड ग्रेड, थर्ड लेवल की सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस लिया। उनके डॉक्टर्स को हमने ट्रेन किया है, अभी तक 32,000 डॉक्टर्स। तो ये एक तरीका है। और उन जिनको हमने ट्रेन किया है उनको भी यही अवेयरनेस प्रोग्राम का वो अपने क्लिनिक्स में, अपने छोटे शहरों में, विलेजेस में, जहाँ सेंटर्स में वो बैठते हैं, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम अपने तरफ से एज अ मेडिकल एसोसिएशन हमने ये प्रोग्राम शुरू करवाया है। और 32,000 डॉक्टर्स की शुरुआत है, अभी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे और आगे ले जाएंगे। और लेकिन एक डर ये भी बना रहता है कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे या टीका लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट होने का डर है। क्या ऐसा कोई चांस होता है इस वैक्सीन के बाद? कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो जो लोकल इंजेक्शन साइट पे कभी थोड़ा सा दर्द, सूजन, बुखार, पर जो मेजर जो जनरली कोई भी रिएक्शन हो सकता है। बट इसके अलावा हम अपने बच्चों को डीपीटी के लगवाते हैं, हर महीने लगवाते हैं, एमएमआर लगवाते हैं, फलाना लगाते हैं, उससे तो कम ही है। और उससे का आगे का बचाव देखो, उसके हिसाब से थोड़ा सा दर्द हुआ एक साइड पे, वो तो कुछ भी नहीं है कंसिडरिंग आपने क्या बीमारी बचा ली आपने। तो हर डॉक्टर, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, अपने क्लिनिक में हो, छोटे पीएचसी में हो, जहाँ पर भी वो इम्यूनाइजेशन कर रहा है, उस डॉक्टर की इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डॉक्टर कि ये वैक्सीनेशन दिए बिना उसको बाहर नहीं जाने देना। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੌਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਬੇहद ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਫਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ HPV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। 28 फरवरी 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ HPV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। HPV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HPV ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਚਾਰਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਦਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, वेलकम। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो मैम, जब ये आया कि गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो स्कूल ने इसको कैसे लिया, पॉजिटिवली लिया, और कैसे सोचा कि हम ये वैक्सीनेशन जो कैंपेन है अपने स्कूल में स्टार्ट करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिफ़ोर इट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट से आने से पहले हमारे स्कूल ने ये मुहिम शुरू कर दिया था। हमारे स्कूल के इंटरैक्ट क्लब ने रोटरी क्लब के साथ कोलैबोरेट करके, और हम 2 राउंड्स ऑफ वैक्सीन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसमें करीब 130 बच्चे और कुछ मदर्स को हमने वैक्सीनेट करा है। सो स्कूल हमेशा तैयार है उन सारे इनिशिएटिव्स के लिए, गवर्नमेंट को सब इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन
and the parents. तो जब आपने ये कैंपेन शुरू किया और अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि स्कूल्स में ये कैंपेन चलाया जाएगा, तो किसी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिल रही है? हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई टीम आ रही है अवेयरनेस के लिए? गवर्नमेंट रिसोर्सेज सब मौजूद हैं, लेकिन हमने अपने एंड पे ऑलरेडी अवेयरनेस हमने ऑनलाइन सेशंस करे हैं पेरेंट्स के साथ। हम पीटीएम्स में और पेरेंट ओरिएंटेशंस में उनसे बात करते हैं कि कैसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी वेल्थ जो पेरेंट्स उन्हें दे सकते हैं वो उनकी हेल्थ है आज के टाइम में। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है स्कूल में, जहाँ हम पेरेंट्स को छोटे छोटे फोरम में बात करते रहते हैं, चाहे वो रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग हो या स्पेशल सेशंस हों ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बुला के कम्युनिकेट करते हैं। तो जाहिर है कि चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किस तरह के चैलेंजेस एक स्कूल में एज अ प्रिंसिपल आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस इन द सेंस पेरेंट्स को टाइम निकाल पाना आजकल सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर सब फैमिलीज़ में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो पेरेंट्स आके सुनेंगे तभी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेरेंट्स हमें अवेलेबल हों। कई बार ऑनलाइन सेशंस करते हैं तो भी पेरेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाते, कभी ऑफलाइन करते हैं, बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स हेल्प्स। कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट होता है जो अवेलेबल नहीं है और वो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, और जो आ सकते हैं वो स्कूल में आते हैं। ये मतलब कि ये इस पे कोई खुल के बात नहीं करता जैसे हमने पहले किया, और अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये मुहिम, ये कैंपेन स्टार्ट नहीं हुआ और वहाँ पे बच्चों को अवेयर नहीं किया गया, और बल्कि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे टीचर्स खुद भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। तो आप वैसे स्कूल्स को, वैसे पेरेंट्स को, वैसे टीचर्स को क्या कहना चाहोगे? जहाँ पेरेंट्स या स्कूल्स या टीचर्स खुल के अभी भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कैंपेन इतना क्लियर है कि इट इज़ नाउ कंपलसरी फॉर ऑल स्कूल्स टू डू इट। इसलिए आप चिंता ना करें, चाहने ना चाहने में भी ऑल स्कूल्स विल हैव टू फॉलो इट नाउ। हम तो अब अपना दूसरा राउंड शुरू करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ द वैक्सीन वी हैव ऑलरेडी डन लास्ट ईयर। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो HPV है वो वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे रिपोर्टिंग्स आ रही थी, बहुत सारे केसेस के बारे में पता चल रहा था। इंटरैक्ट क्लब का इंचार्ज होने में ये है कि अभी तक तो हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो पर ये था कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। GBS इंटरैक्ट क्लब जो है वो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ के साथ कोलैबोरेट, हम उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं, तो हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो जब हमने ये मुद्दा उठाया कि हमें अपने बच्चों को जो है उनको भी वैक्सीनेशन दिलवानी है, तो RCDS ने हमारी बड़ी मदद की इसमें। सबसे पहला जो था वो चैलेंज था कि पेरेंट्स को हम कैसे, जो अवेयरनेस हम कैसे रेज़ करें अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में। तो उसके लिए RCDS ने हमारे लिए बहुत अच्छे ओरिएंटेशन सेशंस किए। सब पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना बड़ा मुश्किल था और कन्वीनियंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरह से हमने हर क्लास लेवल के हिसाब से, पहले हमने ग्रेड 6 के साथ शुरू किया, फिर ग्रेड 7, ऐसे ऐसे करते हमने कम से कम 3 से 4 ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशंस किए। अब RCDS ने हमें किसके साथ कोलैबोरेट कराया? BLK मैक्स हॉस्पिटल। तो हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वहाँ से उन्होंने मतलब हमारे पेरेंट्स को जागरूक किया इसके बारे में, और फिर उसके बाद पेरेंट्स जब बहुत कन्विंस हो गए तो हमने अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो लॉन्च किया था हमने अक्टूबर के महीने में, लास्ट ईयर। हाँ जी। फिर उसके बाद पहला उसका हमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया। क्लोज टू हमने अपने 120 बच्चों को, इंक्लूडिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब पेरेंट्स को पहले ये था कि लड़कों को दिलाने की क्या ज़रूरत है। ये अवेयरनेस भी रेज़ करना बहुत ज़रूरी था कि जो सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन है वो, और वो भी स्कूल में इतने एज़ यंग एज़ 9 ईयर ओल्ड गर्ल को या बॉय को देने की क्या ज़रूरत है। तो ये था कि उनको ये समझाया गया पेरेंट्स को कि जो नीड है, ये जो वैक्सीनेशन का जो सही टाइम है वो सबसे बेस्ट है एडोलेसेंस में उनको दिलाना, सो दैट आगे फ्यूचर पोटेंशियल रिस्क्स जो हैं उनसे बचा जा सके। सो वाई दिस एज, वो उसका कारण यही था कि इस वक्त जब उनको वैक्सीन, जब वो इम्यून हो गए उससे, सो आगे जो पोटेंशियल रिस्क्स उनके हेल्थ रिस्क्स हैं, चाहे सर्विकल कैंसर है या बॉयज़ के केस में जैसे थ्रोट कैंसर या पेनाइल कैंसर,
हमें केसेस पता चलते हैं या क्या, तो उससे बचने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट एज है कि स्कूल में ही इनको वैक्सीनेशन इनका हो जाना चाहिए। आपने क्लब का जिक्र किया, लेकिन सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या आपको किसी तरीके से सेंटर की तरफ से हेल्पफुल होता है? सेंटर या हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ अप्रोच करता है कि स्कूल में ये कैंपेन कैसे चल रही है? नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें कोई ऐसे योगदान नहीं था, सिर्फ एक अवेयरनेस था कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब इसको बहुत ज़्यादा वो कर रही है। तो इसी पॉइंट को हमने उठा करके एक्चुअली अपने पेरेंट्स को भी हमने बहुत अच्छे से कन्विंस करने की कोशिश की कि अब तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया है, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है अब तो नीड है ही। इसीलिए जब स्कूल दिला रहा है और जब स्कूल ये प्रोविज़न दे रहा है, तो आप प्लीज़ उसको, हमको बहुत मुश्किल हुई थी पेरेंट्स को कन्विंस करने में। फिर हमने गूगल फॉर्म्स बनाए, पेरेंट्स को सर्कुलेट किए कि आप इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था। बट हाँ, आरसीडीएस ने हमें जो वैक्सीन्स प्रोवाइड की थी वो इंडिजिनस वैक्सीन थी, सर्वावैक, वो उन्होंने हमें फ्री प्रोवाइड। जैसे एचपीवी वैक्सीन है, उसकी 2 डोज लगती है ना? तो स्कूल दोनों डोज लगवाता है बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल, हमने दोनों डोजेज़ लगवाए थे। तो पहला एक कैंपेन हुआ था, जो फर्स्ट हमारा था वो अक्टूबर में जैसे हुआ, एंड उसके बाद सेकंड उन्होंने बोला था कि 6 महीने के बाद होएगा ये। तो हमने जा कर के उसको फिर फेब मार्च में फिर से जा कर के उसको सेकंड डोज, तो जितने बच्चों ने फर्स्ट डोज लिया था उतने ही बच्चे, सभी बच्चे सेकंड डोज। और सेकंड डोज के बाद हमारे पास बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया पेरेंट्स का। जिन्होंने पहले नहीं अग्री किया था वो अब हमें कह रहे हैं कि फिर से एक बार फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कैंप कंडक्ट करने के लिए। जैसे ये 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक लगता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एज गैप, किसी की एज छोटी होती है लेकिन क्लास बड़ी होती है, किसी की क्लास बड़ी है लेकिन एज उस तरीके से नहीं है, तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? हमने एज के हिसाब से किया था, एंड उसमें हमने बच्चों का आधार कार्ड उसके हिसाब से, मतलब बाकायदा हमने पूरी जांच की थी, आधार कार्ड के बेसिस पे उनकी एज चेक की थी। जो बच्चे उस कैटेगरी में फॉल करते थे, हमने तो 14 के बियॉन्ड भी, क्योंकि हमें BLK मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा था कि 26 साल तक, तो हमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, बहुत सारा हमारे स्टाफ थे और कुछ मदर्स भी थी जिन्होंने आकर के अपने आप को वैक्सीनेट कराया था। तो सबका हमने जो है आधार कार्ड मंगाया था, उससे हमने वेरीफाई किया था, उन सब की आधार कार्ड की कॉपीज़ हमारे पास थी, सॉफ्ट कॉपी था। और देखो, गर्ल्स को समझाया जा सकता है ना, क्योंकि कैंसर उन्हीं को ज़्यादा हो रहा है ये वाला, लेकिन बॉयज़ को आपने कैसे समझाया कि ये क्यों इतना ज़रूरी है इसके बारे में अवेयर होना? तो और जब बॉयज़ को आप समझा रहे थे तो एक किस तरीके का उनका रिएक्शन देखने को मिला? सच कहूँ तो बॉयज़ के जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं तो यहाँ पे गर्ल और बॉय का हम लोग इतना ज़्यादा कोई हम फ़र्क नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। तो जब हम कन्वे करते थे तो हम बेसिक पॉइंट्स कन्वे करते थे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये मैंडेटरी है। बहुत सारा इसमें हमारे पेरेंट्स का सहयोग था अपने बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स आजकल जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं पता। जब हमने ये प्रपोज़ल दिया कि हम वैक्सीनेशन कैंप हम कंडक्ट कर रहे हैं, वो होस्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स ने भी अपना रिसर्च किया। फिर हमारी मीटिंग थी जिसमें पेरेंट्स ने आकर के अपने डाउट्स क्लियर किए, जो भी उनके क्वेश्चंस थे। उसमें भी हमारे साथ जो थे डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मतलब जो है अपने क्वेश्चंस को क्लियर, जो भी डाउट्स थे उन्होंने क्लैरिफाई किया। तो बहुत सारा इसमें हमें पेरेंट्स का हमारे सहयोग था, जिन्होंने खुद, क्योंकि वो अवेयर हैं, मतलब हो गए थे एंड रिसर्च किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को भी, मतलब क्योंकि बाकी वैक्सीनेशंस भी बच्चों के होते ही हैं, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है। HPV इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब वो वैक्सीनेशन नेचुरली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। तो उसी तरह से बच्चे जैसे बाकी वैक्सीनेशंस लेते हैं, तो ये एक और वैक्सीनेशन था जिसमें पेरेंट्स ने भी हमें मदद किया, एंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझाया कि हाँ ये ज़रूरी है। मैम, आप कोऑर्डिनेटर हो, तो जब ये मुहिम चलती है, कैंपेन हम चला रहे हैं, तो जाहिर है कि पेरेंट्स के तक हमने पहुंच करनी है, तो कितना चैलेंज है, कितनी मुश्किल है पेरेंट्स तक पहुंच बना पाना इस कैंपेन को लेकर? देखिए, ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, अगर हमें इसमें बदलाव लाना है तो हमें सबका साथ लेके चलना है। अब आज के समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फ़ोन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, तो पेरेंट्स तक पहुंचना चैलेंज है, पर अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है। स्पेशली जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो जिनके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके थ्रू पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बच्चों तक पहुंचें। कई बच्चे ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम स्कूल आए हैं, तो उन्हें हमें समझाना होता है,
उनके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना है कि ये मुहिम क्या है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। और एक बहुत एक बैरियर जैसे होता है जहां आज भी हमारे समाज में हम घर पे बच्चे, पेरेंट्स कई चीज़ों के बारे में इतने खुल के बात नहीं करते हैं, पर स्कूल एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, टीचर्स इस बारे में डिस्कस करती हैं और कोई भी इस तरह का टैबू अटैच नहीं होता है कि आपको इस बारे में बात नहीं करनी है। तो बच्चों के थ्रू हम पेरेंट्स तक रीच आउट करते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं वो भी पेरेंट्स को कनेक्ट करती हैं और इनके साथ कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स रेगुलरली कॉल करी जाती है। अगर कोई मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचाया है, जैसे कि अगर वो इंग्लिश में गया है, तो हम इंश्योर करते हैं कि वो हिंदी में या जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें वो पहुंचाया जाए, ताकि वो पेरेंट भी उसको समझ के आगे आगे बढ़ सके, वहाँ क्लैरिटी मिले। उसके बाद हम हमारे स्कूल में पेरेंट्स और बच्चों के साथ सेशन रखते हैं, जैसे माँ और बेटी का सेशन। यहाँ पे पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन सब से रिलेटेड सेशंस होते हैं, जहाँ पे बच्चा बेटी माँ के साथ बैठती है और हमारे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं और जो कुछ भी उनके साथ डिस्कस करना है वो एक बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में, बहुत पॉजिटिव हेल्दी वे में उन्हें कन्वे करते हैं। जहाँ पे जब कई मदर्स कुछ शेयर करती हैं तो डॉटर्स को ये लगता है, बेटियों को ये लगता है कि हाँ, हम अब बेटर कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर पे अपनी मदर्स के साथ। और ऐसे ही फादर्स और सन के साथ भी जो है सेशंस रहते हैं, जहाँ पे बॉयज़ को इक्वली ज़रूरत है ग्रूमिंग की, पर्सनल हाइजीन की, अपने आप को समझने की, अपने आसपास की चीज़ों को समझने की, आप कैसे चीज़ों को बेटर रख सकते हैं। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ HPV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਰਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कितनी का अवेयरनेस है इस कैंसर के बारे। आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ जी। तो क्या अवेयरनेस है आपके अंदर कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और क्यों हम वैक्सीन लगवा रहे हैं? Actually, I feel like it's a very pressing issue in today's society because the central government, the school, and everyone is pressing on this matter. So certainly, it must be alarming. That's why we're being aware about this. So yeah, that's all. That was pretty much the reason why I took the vaccination. And as the woke youth, of course, we have to step forward before the others do. आपने वैक्सीन लगवाई? जी। आपको क्या पता है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर वजाइन में सर्विक्स पार्ट होता है, उधर एक कैंसर प्रोड्यूस होता है, उससे लाइक वर्ल्ड में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें इनकरेज करा लगाने के लिए और बहुत अलार्मिंग भी है, तो वी डिसाइडेड टू टेक द वैक्सीन। तो जब आपको वैक्सीन देनी थी या टीका लगाना था तो आपको स्कूल ने कैसे कन्विंस किया, क्या समझाया? ओरिएंटेशन हुई, सेशन हुए, अवेयरनेस सेशन हुए? जी, अवेयरनेस सेशंस हुए थे, ऑनलाइन ओरिएंटेशन भी हुई थी पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, और डॉक्टर्स के थ्रू भी और इंटरैक्ट क्लब के थ्रू बहुत सारी ओरिएंटेशंस हुई थी टू कन्विंस द पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ अस। ठीक है। तो आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ जी। आपको क्या पता है सर्वाइकल कैंसर के बारे में?
सर्वाइकल कैंसर किसी भी तरीके का हो, वो हज़ार्डस होता है, वो डेंजरस ही होता है। द थिंग इज़ कि हमें नॉर्मल कैंसर्स के बारे में पता है कि स्किन कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, बट हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हमारे जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, उनके कैंसर के बारे में ना कोई खुल के बात करना चाहता और ना ही हमें अवेयरनेस होती है। मुझे भी इनिशियली इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं तो हमारे स्कूल ने हमें इस बात की अवेयरनेस दिलवाई थी पिछले साल या उसके पिछले साल, और तब मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी पता चला और हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जांच पड़ताल करना, इसके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी था। हमने वो किया और हमें लगा कि सही डिसीजन है वैक्सीन लगवाना, और फिर हमने वैक्सीन लगवाई। आपने दोनों डोज लगवाई? हाँ जी। देखिए, एक मिथ होता है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे और शायद कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताओ कि आपको किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ कि नॉर्मल रहा सब कुछ? मेरे साथ तो नॉर्मल रहा था, बट हाँ होता है, ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बट वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसका बस होता क्या है, हमारी बॉडी में होते हैं कुछ फाइटिंग सेल्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए ही वो होता है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बट मेरे को पर्सनली नहीं आए थे। तो अगर हम बात करें तो हेल्थ सेशन लगने बहुत ज़रूरी हैं स्कूल में, है ना? हमने पहले भी बात की कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये स्कूल कितने सेशन ऑर्गेनाइज करता है अवेयरनेस को लेके, हेल्थ अवेयरनेस को लेके? हमारे स्कूल ने अबाउट 5 सेशंस तो ऑर्गेनाइज करे ही होंगे। आई एम ऑल्सो एन इंटरेक्टर एंड मे बी उन सेशंस का पार्ट ही थी। सो हमने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा, उनमें अवेयरनेस फैलाई कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जो पेरेंट्स सोचते हैं वही उनके बच्चे भी सोचेंगे, बिकॉज पेरेंट्स की अगर अवेयरनेस नहीं फैलेगी तो बच्चों में भी नहीं फैलेगी। तो हमने बच्चों को बताया, तो बच्चों ने आके पेरेंट्स को बताया, एंड उसके बाद प्रमोट हुई बेसिकली है। तो साढ़े नाल कुछ और लोग बच्चे भी मौजूद ने, स्टूडेंट्स ने, आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ जी। तो कितनी अवेयरनेस है HPV वैक्सीन को लेके? कि अगर हम एक वैक्सीन लगाएंगे तो इट्स वेरी सेफ़, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए मुझे, तो और बहुत अच्छे से लाइक इनिशिएट किया था ये प्रोग्राम, सो इट्स सेफ़, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं लगता। आपने वैक्सीन लगवाई? जी। जब आपके वैक्सीन लगाने के बारे में स्कूल ने बताया तो आपने अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया? जी एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे स्कूल ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा टू ओवरकम माय फियर ऑफ इंजेक्शंस। कि पर्सनली मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम एंड मेरे पेरेंट्स को भी पता चला, मेरे फ्रेंड्स को भी पता चला कि हाउ इम्पॉर्टेंट was that and also me, so I knew that I had to overcome my fear and fight for it. So that's why I chose to be a part of this session and I took that dose. आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ जी। देखिए, ये सबको पता है कि ये कैंसर ज़्यादातर फीमेल्स में होता है ना, गर्ल्स में होता है, लेकिन लड़के भी वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। सिम्टम्स पता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा होता है जैसे STDs हो जाते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है उनकी वजह से लड़कों में भी स्प्रेड होने लगा है ये डिजीज़, और आजकल लड़कों में भी होने लगा है, मेरे फैमिली डॉक्टर ने बताया था। और स्कूल की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, तो आप उसका हिस्सा रहे। कितना आसान होता है कि जब स्कूल पहले से ही आपको अवेयर करना शुरू कर दे? मैं काफ़ी क्लोज़ली रिलेटेड थी, क्योंकि मैं इंटरैक्ट क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने उस प्रोसेस को बहुत क्लोज़ली एनालाइज़ किया था एंड कट टू कट देखा था, लिस्ट मेकिंग, डेटा मेकिंग। स्कूल डेफिनेटली हेल्प करता है। मोरओवर हमारे पास जो RCDS का सपोर्ट आया था, दैट वाज इमेंसली हेल्पफुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रोटेरियन डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करवाए थे, जिससे पेरेंट्स और जो भी, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको ये काफ़ी सारे डाउट्स आए थे अबाउट द वैक्सीन्स, तो जो रोटेरियंस ने, स्पेशली डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर वंदना भल्ला, उन्होंने जो सेशंस कंडक्ट कराए थे ऑनलाइन अबाउट दिस, सारे डाउट्स क्लियर करवाए थे। एंड ये जितने भी अवेयरनेस कैंपेन्स हमने एज स्टूडेंट्स, एज सीनियर मोस्ट बैच ऑफ द इंटरैक्ट क्लब भी कंडक्ट करवाए, वी फाउंड देम टू बी वेरी हेल्पफुल। काफ़ी हेल्प हुई इन सेशंस के थ्रू टू द पीयर्स जिनको वैक्सीन लगवानी थी, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी एंड उनका भी फियर काफ़ी कम हुआ था। आपको पता है कि ये लड़कियों में ज़्यादातर होता है कैंसर, और लड़कों को वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये जो कैंसर होता है ये HPV वायरस की वजह से होता है, और इसमें मेल को भी कैंसर हो सकता है, तो वो भी प्रिवेंट होता है। बहुत थ्रोट और पीनाइल कैंसर होता है जो प्रिवेंट होता है, और प्लस ये HPV वायरस जो होता है उसका स्प्रेड भी रुक जाता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग होता है। जैसे आपको अवेयर किया गया तो आप समझ पाए ये क्या है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद समझ नहीं पाते, डरते हैं, तो आप क्या कहोगे बाकी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी? एज अ स्टूडेंट आप क्या बोलोगे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को कि क्यों ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है? दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है एंड अ लॉट ऑफ कैंसर्स आर नॉट प्रिवेंटेबल। तो जितना हद तक आप कर सकते हो आपको उतना तो करना ही चाहिए।
एंड स्पेशली साइंटिफिकली प्रूवन है, सो यू शुड रिसर्च अबाउट इट एंड गेट इट डन। तो जो डर लगता है लोगों को कि HPV सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, नहीं ये सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं करेगा पार्टेक। पर इस एज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वैक्सीन, सो इट्स बेटर अगर इसी एज में करवा ले, इवन फॉर फ्यूचर ट्रांसमिशन के एस्पेक्ट से। सो इसी एज में करवाना ज़्यादा सही रहेगा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇहद ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤੇ GTC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ SMO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਏਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ AI ਬੇਸਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਸ ਗੁੜੀਆ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਲਗਵਾਉਣ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮਬੰਡ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਮੀਜ਼ਲ ਮਮਸ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ। ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, GTC ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਖਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। हाय। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? हाँ, मैं करती हूँ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ? सर्वाइकल कैंसर इंडिया का सेकंड मोस्ट कैंसर है अमंग ऑल द कैंसर, सेकंड मोस्ट डेंजरस कैंसर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस रखा जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? आज मैंने इस बारे में पढ़ा था, जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा, क्योंकि मेरे पास लड़का और लड़की दोनों हैं, तो मैंने ये पढ़ा कि ये लड़के के लिए भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके भी एक एरिया को इम्पैक्ट कर सकता है। जितना मेरी बेटी के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना मेरे बेटे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्लैरिटी अभी नहीं है, तो आपको लगता है कि अभी इस प्रोग्राम को और सुधारना चाहिए? मुझे यही लगता है कि अवेयरनेस अभी और ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू आ रहा है तो सबको 2009 याद है, तो 2009 के बाद अभी तक वो दिमाग से निकला नहीं है कि क्या उन्होंने उसे कुछ चेंजेस करे हैं तो क्या वही चेन वैक्सीन इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि अगर वो चेन वैक्सीन यूएस में बना है तो यूएस और यूरोप ने उसे क्लियरेंस अभी तक नहीं दिया है, तो मतलब अगर वहाँ क्लैरिटी नहीं है और इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो मतलब क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी बचे हैं? और क्या इंडिया के क्लैरिटी के बाद यूएस और यूरोप इसे इंडिया के साइड इफ़ेक्ट्स देखने के बाद, या इंडिया में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं उसके बाद यूरोप या यूएस इसे इम्प्लीमेंट करेगा? तो क्या इंडिया पे टेस्ट होने का वेट हो रहा है? तो इसलिए मैं भी 1-2 साल वेट करूंगी कि लेट सिम्टम्स इवॉल्व या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो ही मैं अपने लड़का लड़की दोनों को लगवाऊंगी, लेकिन 1-2 साल वेट करने के बाद। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਬਰਨਾਲਾ, GTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।